Hello students, I hope all of you are doing well. By now we have covered many aspects and many topics that are related to aptitude tests. Now we are going to solve reading comprehensions together. So be prepared for that. Everything that we have learned by now, like how to skim and scan, how to read speedily without compromising on comprehension, all those skills we are going to put them to use now. That is, we are going to apply it now for this reading comprehension. So, guys, I want all of you to please follow the entire reading comprehension line by line first. Of course, we are not going to read it line by line, but we are going to skim through it so that we can quickly understand the structure of reading comprehension and main ideas and what all is covered in that reading comprehension. I want all of you to read along with me. Okay, so let's get started. I have taken a long reading comprehension, not very long, but yeah, long enough for you to understand if you get longer passages than how you're supposed to skim it. Okay, let's get started. तो देखिए, ये है फर्स्ट सेंटेंस जो हमको पढ़ना ही होगा। यहाँ पर कोई टाइटल दिया हुआ नहीं है, तो चलिए ये पढ़ते हैं। Psychology as a field of scientific inquiry continues to evolve amidst internal debates over its methods and subject matter. राइट, तो हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बात करेंगे हाउ साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, उसके डिबेटेड कुछ मेथड्स है उसके बारे में। राइट, अब चलो क्विकली स्किम करते हैं हम। अनलाइक ओल्डर साइंसेस, biology faces unique challenge. Difficulty for objectifying studying human thought has led to development of various schools. Now this is last sentence. This also we have to read in detail. These issues had led to the development of various schools of thought, each offering different interpretations on of how the human mind works. राइट, सो हम एक पैराग्राफ में बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और दूसरा कैसा ये यूनिक चैलेंज फेस करती है और कैसे इस इशू के बारे में अब चर्चाएं होने लगी है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। राइट, सो वो साइकोलॉजी में किस तरीके से उसका उपयोग होता है एंड हाउ one thought process is different than other thought process. Maybe we will cover that in the next paragraph. We don't know. For that, we have to skim through. But this is the approach that we are going to follow for entire passage. Okay. Yes. One permanent school. Now see, we are talking about one permanent school. School means school of thought. एक एक तरीके से विचार करने वाले लोग हैं। वो क्या तरीका है विचार करने का, उसके बारे में हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। One prominent thought in behaviorism, which argues that psychology should be concerned only with observable behaviors, sorry, rather than the internal workings of mind. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बिहेवियरिज्म एक तरीके का स्कूल है जो कहता है कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर्स है लोगों के, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, ना कि दिमाग के इंटरनल वर्किंग्स के बारे में इतना ज़्यादा बात होनी चाहिए साइकोलॉजी में। राइट, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, और क्या-क्या बिलीव करते हैं बिहेवियरिस्ट्स? मेजरेबल एक्शंस, रिएक्शंस, साइंटिफिक, रिलायबल। हाउएवर, देखिए अभी हाउएवर वर्ड आया, ये सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। Critics of behaviorism argue that this approach is too narrow and ignores the complexities of human consciousness. राइट, यहाँ हम कह रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, ये स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले लोग कुछ 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 बोल तो रहे हैं कि जो मेजरेबल एक्शंस ही हमको कंसिडर करनी चाहिए, सिर्फ बिहेवियर ही कंसिडर करना चाहिए, इंटरनल माइंड में नहीं फंसना चाहिए। पर क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग हैं बिहेवियरिज्म को। वो क्या कहते हैं कि ये बहुत ही नैरो अप्रोच है और इसकी जो दिमाग जिस तरीके से क्लिष्ट तरीके से काम करता है उसको समझना इम्पोर्टेंट है इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन साइकोलॉजी। सो ये उनका कहना है कि ये वाला जो अप्रोच है बिहेवियरिज्म का वो बहुत ही नैरो है। इट इज नॉट कवरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट, फिर से इन कॉन्ट्रास्ट आया। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में किसी ने कुछ बोला है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच, हमने बात की बिहेवियरिज्म की, है ना, ये एक अप्रोच हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव अप्रोच की। एम्फेसाइजेस इंटरनल मेंटल प्रोसेस। इसके विपरीत कॉग्निटिव अप्रोच है जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस पे
ये करता है, काम करता है और समझता है उस चीज को। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट पीपल परसीव, थिंक and studying workings of the mind approach provides more insight into mental activities. Struggles with the issue of subjectivity cannot be directly observed. Mental processes cannot be directly observed. ये challenges है जो वो face करता है. I mean उस thought of school के सॉरी स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो है वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है ये सामने दिखाई नहीं देता, इट इज क्वाइट इंटेंजिबल। तो उस पे काम करके और रिजल्ट निकालना है, उस पे काम करते रहना, दैट इज वन चैलेंज दैट दे फेस। नेक्स्ट, अनदर राइजिंग फील्ड इन साइकोलॉजी न्यूरोसाइंस। अब हमने किस किस की बात की? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव अप्रोच, और तीसरी हम बात कर रहे हैं न्यूरोसाइंस की, on biological basis of behavior and mental process, advanced imaging techniques to study brain, bridge the gap between mind and body। अब ये लास्ट सेंटेंस है, इसको पूरा पढ़ना है। While neuroscience has made significant progress, it has not yet provided a complete explanation of how consciousness arises। अभी तक न्यूरोसाइंस ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है वैसे, बट अभी भी हमारे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑफ हाउ कॉन्शियसनेस बेसिकली अराइजेस, राइट। तो इस तरीके से हमको स्किम और स्कैन करना है। अब मैं सिर्फ स्किम और स्कैन करूंगी, आप लोग भी मेरे साथ साथ स्किम और स्कैन ही करिए। अगला जो पैराग्राफ है वो मैं अब ये बताऊंगी नहीं आपको इस वीडियो में कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड कैच अप विथ मी देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पैराग्राफ नाउ। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे स्किम कर रही हूँ, कैसे प्रिव्यू कर रही हूँ, मैं करती चली जाऊंगी, आपको कैचअप करना होगा। ओके, चलिए। फर्स्ट सेंटेंस, despite the differences among these approaches, many psychologists agree that a comprehensive understanding of human behavior requires integrating multiple perspectives. Requires integrating multiple perspectives, right? Yet, psychology, अब ये yet है, देखिए ये वापस एक connector है. Remains in flux, no single approach, complexity of human mind. Now, last sentence. As such, the field is marked by ongoing debates about what constitutes valid evidence and how best to study the human experience. So studies are still going on, right? So ये हुआ हमारा previewing the entire passage। तो हमको ये समझ में आया है कि शुरुआत में हमें बताया गया है कि कैसे यूनिक चैलेंजेस साइकोलॉजी फेस करती है। फिर अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में हमें बताया गया, यहाँ पे बिहेवियरिज्म के बारे में, कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में, न्यूरो साइंस के बारे में, और एट द एंड इसको कंक्लूड किया गया है कि किस तरीके से अलग अलग ये पर्सपेक्टिव्स एक करके साइकोलॉजी का मतलब ऑप्टिमम ये किया जाता है, यूज किया जा सकता है, राइट। और स्टडीज अभी भी जारी है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चंस क्या है? Which of the following best explains the main challenge faced by psychology as a scientific field? कौन से यूनिक challenges में से भी, उसमें से भी कौन सा मेन चैलेंज फेस कर रहा है साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक फील्ड? चलो, inability to focus solely on observable behaviors, complexity of studying human thoughts and emotions objectively, lack of advanced technology to study the brain, growing competition between behaviorism and neuroscience। नो, देखिए अब ये न्यूरो साइंस और बिहेवियरिज्म देख के आपको लग सकता है कि हाँ शायद यही आंसर होगा, यही तो हमने पढ़ा था, लेकिन समझिए कि ये माइनर आइडियाज है। ओके, ये माइनर आइडियाज है उसमें के, ये कोई मेजर आइडिया नहीं है, तो आप इसको मेन आइडिया या मेन चैलेंज नहीं कह सकते हैं। ऑलराइट, ये बहुत ध्यान रखा कीजिएगा इन सब चीजों का, बिकॉज इन्हीं माइनर आइडियाज और कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स के कारण हम गलत लिख देते हैं कभी कभी हमारा ऑप्शन। थर्ड इज द लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसा तो हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है ब्रेन को स्टडी करने के लिए, इसीलिए साइकोलॉजी में हम अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टडिंग ह्यूमन थॉट्स एंड इमोशंस ऑब्जेक्टिवली। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टडिंग ह्यूमन थॉट्स एंड इमोशंस ऑब्जेक्टिवली। ऑफ कोर्स ह्यूमंस क्या सोच रहे हैं, वो कैसे ऑब्जेक्टिवली बिहेव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे,
ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है ना साइकोलॉजी में, इसलिए तो अलग अलग अप्रोचेस को हम समझ रहे हैं, मान रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ठोस अभी तक कुछ हमें समझ में नहीं आ पाया है कि ह्यूमन थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जेक्टिवली कैसे हम डील कर सकते हैं, राइट। इट्स इनएबिलिटी टू फोकस सोनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, नहीं ये भी गलत है। सो ये एलिमिनेट किया हमने, ये एलिमिनेट किया, लास्ट भी एलिमिनेट किया। यहाँ कोई कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो, नॉट इम्पोर्टेंट, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बी, इसलिए हम बी के साथ जाएंगे। और ये कहाँ पर हमको देखने को मिलता है बी ऑप्शन? अगर हम देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं दिस इज यूनिक चैलेंज, द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्जेक्टिवली, क्या है यूनिक चैलेंज? डिफिकल्टी ऑफ ऑब्जेक्टिवली स्टडिंग ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर। इसी का पैराफ्रेज्ड वर्जन आपको ऑप्शन में दिया गया है, दैट्स द रीजन बी इज करेक्ट। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव अप्रोच इज दैट। ओके, तो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव अप्रोच, बिहेवियरिज्म जैसे हमने पढ़ा, बिहेवियरिज्म में क्या है, हम सिर्फ बिहेवियर को स्टडी करके और फाइनलाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन होना चाहिए। कॉग्निटिव अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, कॉग्निटिव अप्रोच में देख लेते हैं एक बार। emphasizes the importance of internal mental process, सिर्फ बाहर के बिहेवियर के बारे में बात नहीं हो रही है, इंटरनल मेंटल प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है कॉग्निटिव अप्रोच में। तो चलिए, पूछा क्या है, प्राइमरी डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक्सटर्नल एक्शंस व्हाइल कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज इंटरनल थॉट प्रोसेस। पहले ही इसमें हमको हमारा ऑप्शन मिल गया है, तो दूसरे कुछ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कीवर्ड्स पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इससे भी कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास में। Cognitive rejects the scientific method unlike behaviorism, नहीं। behaviorism accepts mental process as valid, नहीं। वो तो सिर्फ बाहर के बिहेवियर की बात कर रहा है ना, अंदर मेंटल प्रोसेस क्या हो रही है ये तो बोल ही नहीं रहा, तो ये भी एलिमिनेटेड। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बिलीव ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी मेजर्ड अनलाइक बिहेवियरिस्ट, ये तो भी, ये गलत है ना। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ही तो कह रहे हैं कि हमको मेंटल मतलब समझना होगा कि मेंटली क्या चलता है एक इंसान के दिमाग में, वरना इट विल बी डिफिकल्ट। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिज्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिज्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज? की क्रिटिसिज्म क्या हुआ है बिहेवियरिज्म पे, हमको ये देखना है। रिलाइज टू हेविली ऑन ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, नहीं। बिहेवियरिज्म में तो बोला ही नहीं गया है ना कि कुछ और देखो, बस बिहेवियर देखो, दैट्स ऑल। इट डिसमिसेस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यस। अगर सिर्फ बिहेवियर देखेंगे और वो बिहेवियर कहाँ से आ रहा है ये नहीं देख रहे हैं, तो इनकम्प्लीट है ना। ह्यूमन कॉन्शियसनेस की ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पर। So this is one of the problem. This may be the option, but we cannot finalize before we see all the options. It does not account for external actions and reaction. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है, उल्टा एक्सटर्नल क्या, हमारे रिएक्शन से, एक्शन से, उस पे ही बिहेवियरिज्म जो है वो ठोस है, राइट। इट ओवरली कॉम्प्लिकेट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट डज नॉट, राइट। ये तो सिंपल बोल रहा है कि बिहेवियर जैसा भी है उस हिसाब से उसको आप फाइनल कर दो कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन होना चाहिए। इट इज सिंप्लीफाइंग, इट नॉट कॉम्प्लिकेटिंग। सो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन जाएगा बी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी नहीं करता है, सिर्फ बिहेवियर के ऊपर डिसाइड करता है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the focus of neuroscience as a psychological approach? Focus of neuroscience as a psychological approach. Neuroscience का psychological approach क्या है? Measuring intelligence and mental traits, analyzing how people think and remember, studying the biological basis of behavior and mental processes, and imagination and creativity. चलिए, अब neuroscience का क्या है एक बार देख लेते हैं फटाक से जाके, क्योंकि हमने वो भी पढ़ रखा है, राइट। को पता है कहाँ पर मिलेगा वो, यहाँ। which focuses on biological basis of behavior and mental processes. तो ये करता है न्यूरोसाइंस, राइट, बायोलॉजिकल बेसिस।
बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस कहाँ दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, स्टडिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ग्रेट, तो ये हमको ऑप्शन मिल गया हमारा। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू मेनी साइकोलॉजिस्ट्स बिलीव is necessary for a complete understanding of human behavior? Remember, we have read about it in the last paragraph. Last paragraph, guys. Last paragraph क्या है, जरा देखते हैं क्या क्या अंडरलाइनिंग डिफरेंसेस, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। क्या कह रहे हैं, ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इसी बात पे अग्री कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव कैन हेल्प अस, कैन एक्चुअली help psychologists to dig deeper and at the same time help their patients to get better, right? So ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ऑप्शंस में देखते हैं वापस एक बार, क्या है? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सोली ऑन कॉग्निटिव नहीं, हम तो बोल रहे हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव इकट्ठा करो। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं सोली, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रिजेक्टिंग सब्जेक्टिव मेथड्स एंड फोकसिंग ऑन बिहेवियरिज्म, सब्जेक्टिव मेथड्स को रिजेक्ट कर देंगे और बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म सिर्फ से कुछ नहीं होगा, यही तो कह रहे हैं ना न्यूरो साइंटिस्ट। इंटीग्रेटिंग मल्टीपल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, यस ये बात तो हो रही है। फोकसिंग एक्सक्लूसिवली, जहां ऐसे वर्ड है एक्सक्लूसिवली, सब्जेक्टिव मेथड ऑफ रिजेक्टिंग। अभी ये सब चीजें आप समझ लो कि अगर ये एक्सक्लूड कर रहा है चीजों को ऑप्शन, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है नेसेसरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए पैराग्राफ में बात की गई है कि सब अप्रोचेस को मिक्स करके कोई एक अप्रोच बनाना पड़ेगा, राइट? तो ये एक्सक्लूसिव वाला तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। सो कौन सा है? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्विकली स्किम स्कैन करना है, रिव्यू करना है, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो कल फिर से मैं एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके आपके लिए आऊंगी और आपको वो भी सॉल्व करना होगा मेरे साथ में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।